Oh man, dude. Hello students, today our topic is CPU scheduling. In computer science, scheduling is the method by which threads, processes or data flows are given access to system resources. For example, processor time, communication bandwidth, etc. This is usually done to load balance a system effectively or achieve a target quality of service. So from this point, you should know that what is scheduling. It is a method by which we can use the system resources efficiently and fairly. CPU scheduling is a process that allows one process to use the CPU while the execution of another process is on hold. That is, the other process is in waiting state due to unavailability of any resource, like the process is waiting for input output task to be done, thereby making full use of CPU. The aim of CPU scheduling is to make the system efficient, fast, and fair for the processes. Whenever the CPU becomes idle, the operating system must select one of the process in the ready queue to be executed. And when the CPU sits idle, when a process in execution waits for some input output event, then at this time CPU is doing nothing, that is idle. The selection process is carried out by the short-term scheduler or CPU scheduler. The scheduler selects from among the processes in memory that are ready to execute and allocates the CPU to one of them. And what are the schedulers? The CPU schedulers in operating system are the long-term scheduler. The function of a long-term scheduler is to select the jobs from the pool of the jobs and load these jobs into main memory that is in ready queue of that computer. So the long-term scheduler is also known as the job scheduler. And the second one is short-term scheduler. The function of a short-term scheduler is to select a job from the ready queue and gives the control of the CPU to that process with the help of dispatcher. That's why the short-term scheduler is also said to be the CPU scheduler. The method of selecting a process from the ready queue by the short-term scheduler is depending on the scheduling algorithms. And the last one is the medium-term scheduler. If a process requests an input output in the middle of execution, then the process removed from the main memory is loaded into the waiting queue. When the input output operation is completed, then the job moved from waiting queue to ready queue. These two operations are performed by the medium term scheduler. And now after these 3 points, अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि सीपीयू स्केड्यूलर 3 तरह के होते हैं कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर एंड मीडियम टर्म स्केड्यूलर. The first one is long term scheduler and its job is to organize the job in a ready queue. ठीक है, तो रेडी क्यू क्या होती है? रेडी क्यू मेन मेमोरी में क्यू तैयार होती है जॉब्स की, और जैसे जैसे जॉब्स इनपुट होती रहती हैं वो इस क्यू में अरेंज होती रहती है. तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का काम है जॉब को स्केड्यूल करना, लेकिन उसने सिर्फ जॉब को अरेंज किया है. कौन सी जॉब उसमें से सीपीयू के पास एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी, ये सिलेक्शन शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का है. तो शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर डिस्पैचर की हेल्प से सीपीयू को इस जॉब क्यू में से एक जॉब पिक करके अकॉर्डिंग टू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम किसको डिस्पैच करता है? सीपीयू को डिस्पैच करता है. Now the function of short term scheduler is clear to you. Next is medium term scheduler. अभी क्या है, जॉब सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रही है, लेकिन जब तक प्रोसेसिंग का काम है तब तक तो सीपीयू उस जॉब को अपने पास रखेगा. अभी जॉब के बीच में कुछ इनपुट आउटपुट टास्क भी हैं. फॉर एग्जाम्पल आप C++ के प्रोग्राम्स पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, पहले आउटपुट स्टेटमेंट है, इनपुट स्टेटमेंट है, फिर कहीं कैलकुलेशंस हैं, फिर आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं. तो जब आउटपुट और इनपुट का काम हो रहा होता है तो उस समय तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के काम होते हैं. उस समय सीपीयू क्या करेगा? ठीक है ना, तो उस समय सीपीयू आइडल रहेगा. अब अगर इतनी देर इनपुट आउटपुट यूजर डिपेंडेंट है क्योंकि, तो पता नहीं कितनी देर सीपीयू को आइडल रहना पड़े, तो बेटर है कि सीपीयू
जॉब क्यू में से नेक्स्ट जॉब को पिक करके इसको स्केड्यूल करना शुरू कर दे, उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे। इससे क्या होगा, रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा, राइट। जैसे ही वो जॉब इनपुट आउटपुट करके वापस आएगी तो उसका स्टेट सेव करना मीडियम टर्म स्केड्यूलर का काम है। तो मीडियम टर्म स्केड्यूलर स्विच करेगा उन दो जॉब्स के बीच में कि जो जॉब एग्जीक्यूट हो रही है अगर उसको भी इनपुट आउटपुट की डिमांड की जरूरत पड़ी तो वो अब सीपीयू को छोड़ सकती है, और वो जो जॉब पहले सीपीयू को छोड़कर गई थी उसका इनपुट आउटपुट कंप्लीट हो गया है तो अब वो वापस सीपीयू में स्विच कर सकती है। इस तरह से क्या होगा, बारी बारी से जॉब सीपीयू में प्रोसेस के लिए आती रहेंगी और सीपीयू भी आइडल नहीं रहेगा और रिसोर्सेज भी बिजी रहेंगे। इस डायग्राम से हम तीनों स्केड्यूलर्स के काम अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ही कोई न्यू बॉर्न जॉब आपके पास आई है, प्रोसेस आई है, तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर क्या करता है, उसको रेडी क्यू में अरेंज करता है। रेडी क्यू में अरेंज होने के बाद शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर अकॉर्डिंग टू स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम विद द हेल्प ऑफ डिस्पैचर उसको सीपीयू को दे देता है और सीपीयू के पास ये जॉब रनिंग स्टेट में आ जाती है, राइट। ये अब जॉब रनिंग स्टेट में है। अब रनिंग प्रोसेस को हो सकता है कि इनपुट आउटपुट इवेंट जो है वो करना पड़े, तो इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए सीपीयू अब क्या करेगा, उस प्रोसेस का वेट करेगा जब तक कि इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीट नहीं हो जाते। तो जैसे ही रनिंग प्रोसेस के पास कोई इनपुट आउटपुट इवेंट आता है तो अब जॉब वेटिंग स्टेट में है। वेटिंग स्टेट में आने के बाद मिड टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रेडी क्यू में से कोई और जॉब उठाकर सीपीयू को डिस्पैचर की हेल्प से डिस्पैच कर देता है और अब दूसरी जॉब रनिंग स्टेट में आ जाती है। जैसे ही वेटिंग स्टेट में रहते हुए इनपुट आउटपुट इवेंट कंप्लीट हो जाता है तो वापस ये प्रोसेस फिर से रेडी स्टेट में आ जाती है और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर विद द हेल्प ऑफ डिस्पैचर फिर से सीपीयू को ये जॉब प्रोवाइड करा देता है। और अब ये जॉब कब तक रनिंग स्टेट में रहती है, जब तक कि ये टर्मिनेट ना हो जाए। तो जैसे ही जॉब कंप्लीट कर लेती है अपना एग्जीक्यूशन तो वो एग्जिट कर जाती है और वो टर्मिनेटेड स्टेट में आ जाती है। डिस्पैचर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अनदर कंपोनेंट इन्वॉल्व्ड इन द सीपीयू शेड्यूलिंग फंक्शन इज द डिस्पैचर। The dispatcher is the module. You must know what is a module. Module is a function or subroutine that gives control of the CPU to the process selected by the short-term scheduler. तो CPU को ये कंट्रोल प्रोवाइड करता है किस प्रोसेस के लिए, वो प्रोसेस के लिए जो कि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर ने सेलेक्ट करी है। दिस फंक्शन इन्वॉल्व स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट। स्विचिंग कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि किसी प्रोसेस को सीपीयू अवेलेबल कराना। स्विचिंग टू यूजर मोड। यूजर मोड में आने का मतलब है कि इंटरैक्टिव प्रोसेस करना। जंपिंग टू द प्रॉपर लोकेशन इन द यूजर प्रोग्राम टू रीस्टार्ट दैट प्रोग्राम फ्रॉम वेयर इट लेफ्ट लास्ट टाइम। तो डिस्पैचर का एक काम ये भी है कि जहां पर प्रोसेस ने छोड़ा था किसी इवेंट के आ जाने की वजह से सीपीयू को, तो जब वो वापस आए तो बिल्कुल उसी जगह से रीस्टार्ट हो जाए। The dispatcher should be as fast as possible given that it is involved during every process switch. The time taken by the dispatcher to stop one process and to start the another process is known as the dispatch latency. और अब आप समझ सकते हो कि एक प्रोसेस को स्टॉप करके बाहर निकाला और दूसरी प्रोसेस को सीपीयू को डिस्पैच किया, इस टाइम गैप को कम से कम होना चाहिए ताकि क्या हो, ओवरहेड्स कम हो। तो द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्पैच लेटेंसी। If the dispatch latency is increasing, then the degree of multi-programming decreases. तो अगर स्विचिंग करने में समय, जॉब्स को इनपुट और आउटपुट करने में, स्वैप इन और स्वैप आउट करने में ज्यादा समय लग रहा है, डिस्पैच लेटेंसी ज्यादा लग रही है, तो आप कितनी जॉब्स को एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर इन और आउट कर पाओगे। दैट मीन्स कि मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर डिस्पैच लेटेंसी दैट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द स्विचिंग ऑफ द जॉब्स will increase, then multi-programming will automatically decreases. The CPU scheduling criteria, throughput in output operating system, it means how many jobs are completed by the CPU in a particular given time. Turnaround time, the interval between the submission of the process and the time of completion is the turnaround time. The time interval between the submission of process and the time of the completion of this process is known as the turnaround time.
The turnaround time equals to waiting time in ready queue plus executing time plus waiting time in waiting queue for input output. The addition of these three are equals to turnaround time. Waiting time in operating system. Waiting time is the sum of periods spent waiting by a process in the ready queue to get the CPU. Response time in operating system. Response time is the time duration between the submission of the job and getting the first response. CPU utilization in operating system. This is the percentage of time that the processor is busy. CPU utilization may range from 0 to 100%. Thank you. We'll meet you again in the next video. Till then, stay safe, stay healthy.